So guys, in a previous session we discussed some example which is based on Newton's first law and second law. Let's continue our session, and in this session also we solve some example from the textbook which is based on the same topic. Let's start with the first one, example number 5.15. What is the problem statement? Two bodies of mass 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface and tied to ends of the slight string, and F is applied 600 Newton. So two bodies given to us, M1, M2, 10 kg and 20 kg, and force F is equal to 600 Newton is applied. Thus both this body are placed on a smooth horizontal plane. Smooth means we are not counting the friction force. Friction force is what? 0. Okay, as we studied. So here no friction, so you just consider this one. Now F is applied on A, on N, on B along the string. मतलब पहले A पर फोर्स लग रहा है, सेकेंड केस में B पर फोर्स लगा. So case 1 and case 2, F is applied on A and F is applied on B. In this both the cases F is applied along the string, मतलब string horizontal है तो फोर्स भी ऐसे horizontally लग रहा है, ऐसा given केस है. ठीक है. Now what is the tension in the string in each case? मतलब दोनों ही केस में टेंशन फाइंड करना है. तो ऐसा प्रॉब्लम तो हमने प्रैक्टिस में सॉल्व किया हुआ है. मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, बाद में आप न्यूटन सेकेंड लॉ से सॉल्व कर लेना. ठीक है. तो केस 1 पे चलते हैं. तो दोनों केस में पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं. ओके, इफ यू कंसीडर द केस 1, देन द एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. व्हाई? फोर्स इज राइट हैंड साइड. इफ यू कंसीडर द केस 2, देन एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. In this both this case F is same, mass is same. So for both case, what is acceleration? F net upon mass of the system. F net में आपको इंटरनल टेंशन काउंट नहीं करना है, ऐसा हमने थ्योरी सेशन में देखा है. तो F net कितना लग रहा है? F, और मास कितना है? M1 plus M2. So M1 plus M2. Without finding this acceleration, you can't able to solve out this problem. Okay, that's one is a must be needed into this problem. So what is this acceleration? F is equal to 600 upon M1 plus M2, 10 plus 20. So that's a 30. 0 0 cancel out. So 20. So acceleration का आंसर हुआ 20 meter per second square. That is the first one. Okay, now you solve this problem separately. First problem is left hand side, right? Second problem is right hand side. You just solve out this. Miss, you draw the FBD. Thus in case 1, consider this tension on this one is T1 and tension on this one is T1, like this. In case 2, consider the tension is T2. So you have to finding out the T1 and T2. That is your problem. From this one you find the T1. From this one you find the T2. Okay, so you just draw any FBD. Maybe you draw the FBD of B, maybe you draw the FBD of A. You draw the FBD of B, you draw the FBD of A, and you find the answer by the using of Newton second. Okay, चलो कोई एक को सॉल्व करके देख ले. यहाँ पे मैं दोनों का FBD बनाता हूँ. आपको कोई एक ही FBD बना के एक ही सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों केस में T1 तो सेम रहेगा, यहाँ पे T2 सेम रहेगा. ठीक है. So what is FBD of B and FBD of A? यहाँ पे B का FBD बनाओ. So that is B. Acceleration right hand side, tension right hand side. A का FBD बनाओ. Force F, tension T1, acceleration right hand side. So that is FBD. You apply the Newton second law, find the answer. So that is remaining calculation is in homework. ठीक है. दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, आपका आंसर T1 का मिल जाएगा. यहाँ पे बना दे FBD of B and FBD of A. चलो FBD of B बनाते इस केस में. तो इस केस में AB है, फोर्स लेफ्ट हैंड साइड F, राइट हैंड साइड T2, acceleration left hand side A. So that's one. Now A का FBD बनाओ. A, left hand side force T2, there is no right hand side force, acceleration left hand side. That's one answer. Okay, इसमें भी आपको FBD बनाए. अगर आप इसमें काउंट करते हो तो फिर आपको क्या लिखना है इसमें? F net is equal to mass of B into A. That's M2 is the mass of B. This is the mass of B and M1 is the mass of A. मास ऑफ ए. अब दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आफ्टर अप्लाइंग द न्यूटन सेकेंड लॉ यू गेट द सेम आंसर फॉर द T1. इसमें भी आप दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, यू गेट द सेम आंसर ऑफ अ T2.
ठीक है, तो आप दोनों ही ट्राई करना है होमवर्क में, और यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम बाय द यूजिंग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ एंड फाइंड द T1 in this case and T2 in this case. If you using this figure you get the answer of T2, you get the same answer for this figure also. दोनों में ही आप सेम आंसर मिलेगा, इसमें भी दोनों ही आप सेम आंसर मिलेगा, और ऐसे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हुई है। ठीक है, तो रिमेनिंग कैलकुलेशन जो है वो होमवर्क में करना है, और आप अपना आंसर जो है टेक्स्ट बुक के आंसर के साथ कंपेयर करना है। ओके, सो नोट दिस एग्जाम्पल। Okay, next example number 5.16. The two masses of 8 kg and 12 kg, so M1 8 kg, M2 12 kg are connected at the end of the light inextensible string. Underline light string, मतलब ideal case है. It goes over the frictionless pulley. This type of case, this is the string connected to the M1 M2, it passes over the pulley like this. Okay, and find the acceleration of the system and the tension of the string when this system is released. You can say, suppose a system is released right now, M2 is higher, M1 is smaller, means this object's moving downward with some acceleration a, then this object's moving upward with the acceleration a. Now this everything is ideal, so we consider this situation only. Okay, so this is exactly similar as the Atwood machine. So you just apply this Atwood machine concept, then A is given here, which force is applied? M1G, here M2G, here the tension, here the tension, and ideal case for tension over this whole string is same. Okay, so what is acceleration? So use this directly formula, acceleration is equal to higher minus lower one, so M2 is higher, so answer is what? M2G minus M1G upon M1 plus M2, that is the acceleration of system. I am just applying the which concept, F net is equal to ms, A is equal to F net upon M, और ऐसे कोई केस में एक्सेलरेशन ऐसे लिखते हैं हमने प्रीवियस हम लोग थियोरी सेशन में देखा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर ही लिख रहा हूँ, थियोरी सेशन में आप एक बार देख लेना। और एटवुड मशीन है तो टेंशन का आंसर क्या रहता है? व्हाट इज टेंशन? T इज इक्वल टू M1 M2G upon M1 plus M2, that is our tension. Simple. So both this equation we have to derive in a theory session. You just remember this, put the all value, you getting this answer. Okay, so calculation is in homework, you just try to solve out this problem by yourself. Note करो example को. Let's come to this next example. Example number 5.18 from the exercise. Two billiard balls, each of mass 0.05 kg. So mass of this ball, here I am just drawing some situation, is what? 0.05 kg. Two billiard balls are moving in opposite direction with the speed 6 meter per second. So first billiard ball and second billiard ball. Okay, so इसकी स्पीड, दोनों की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड in opposite direction. That's just drawn I am here, and they are collide and rebounds with the same speed. Underline same speed. So they are collide and rebounds means just come back with the same speed. So 6 meter per second, 6 meter per second. Then what is the impulse applied on each ball? सो मतलब आप फर्स्ट और सेकेंड बॉल को किसी भी एक को काउंट करो, व्हाट इज द इम्पल्स इज अप्लाइड. सो एक्चुअल सिचुएशन इज व्हाट इफ यू कंसीडर ओनली फर्स्ट बॉल. ओके, नाउ द स्पीड एंड एवरीथिंग इज सेम, सो इम्पल्स ऑन द बोथ द बॉल इज सेम, ओनली डायरेक्शन इज अपोजिट. अगर इस पे लेफ्ट पे लग रहा है तो इस पे राइट पे लगेगा, अगर इस पे राइट पे है तो इस पे लेफ्ट पे होगा. ठीक है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी, बाकी सब सेम होगा. So we have to find the impulse, means change in momentum of any one of this ball. Maybe ball 1, maybe ball 2. In magnitude both are same because everything is same. Now if you consider any one of this ball out of this, so this is the initial situation for the both the ball and this is the final situation for the both the ball. अगर आपको एक बॉल को काउंट करो, सपोज बॉल 1 को, so that's a 1, it's moving with the v is equal to 6 meter per second. Okay, initially, and that's come back with the same speed, v is equal to 6 meter per second. So that's one is exactly similar situation as we studied in a previous theory session. Okay, if any ball moves right hand side is come back after collide with the wall. एक्चुअली बॉल के साथ उसकी कोलिजन हो रही है, लेकिन सिचुएशन तो कुछ ऐसी ही है, ऐसे जा रहा है और ऐसे बॉल के साथ, मतलब यहाँ पे ये बॉल इसके लिए बॉल के जैसा वर्क करेगा और सेकेंड बॉल के लिए फर्स्ट बॉल बॉल के जैसा वर्क करेगा. ठीक है, तो मतलब ऐसे जा रहा है ऐसे आ रहा है, तो कितना मोमेंटम चेंज होता है डायरेक्टली इसमें. अगर इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, ओनली डायरेक्शन ही चेंज हो रहे, तो चेंज इन मोमेंटम, सो इम्पल्स
फॉर ईच बॉल, फॉर ईच बॉल impulse means change in momentum, change in momentum. J is equal to delta P is equal to 2mv perpendicular, ऐसा कुछ हमने सीखा था. 2mv परपेंडिकुलर, डायरेक्ट इक्वेशन को अप्लाई करो, आपका आंसर होगा. ठीक है, 2mv परपेंडिकुलर, ये आंसर है. व्हाट इज दिस v परपेंडिकुलर हियर? दैट इज अ कॉन्टैक्ट सरफेस. सी what is this actually? कॉन्टैक्ट सरफेस. अगर आप इसको एक कॉन्टैक्ट सरफेस जगह पे आप वॉल रख दो तो इजीली आपको समझ में, क्योंकि वो सेम सिचुएशन आपको अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसी है, ये वेलोसिटी ऐसी, तो परपेंडिकुलर ही हुई वेलोसिटी. देखो इस डायरेक्शन में आप ड्रॉ करो तो ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड. आप इसमें वैल्यू रख दो तो ये जो v है वही v परपेंडिकुलर है. तो इस केस में v इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर. ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू रखो. चलो, तो j इज इक्वल टू डेल्टा p इन मैग्नीट्यूड. दिस इक्वेशन इज ओनली अप्लाइड फॉर मैग्नीट्यूड. ओके, व्हाट इज m? 0.05. सो 2 into 0.05 into v 6. सो ये हुआ 6. सो 2 into 0.05 मतलब 0.1 हुआ. 0.1 into 6 करो 0.6 हुआ. तो मतलब फाइनली आपका आंसर हो गया J इज इक्वल टू 0.6 न्यूटन इंटू सेकेंड, है ना. 2 into 5 करो 10 हुआ, और 10 हुआ तो इसके 0.05 है तो 0.1 हुआ. 0.1 into 6 करो 0.6 हुआ. दैट इज अवर आंसर. सिंपल. चेंज इन मोमेंटम फॉर ईच बॉल यू जस्ट गिव्स बाय दिस वे. आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट ही अप्लाई करना, और कुछ नहीं है. ओके, ऐसे हमने ये भी केस सॉल्व किया था कि अगर ऐसे बॉल जा रहा है और ऐसे आ रहा है तो आपको परपेंडिकुलर वेलोसिटी है लेनी, ये आपकी v परपेंडिकुलर हुई. ओके, पैरेलल तो चेंज ही नहीं हो रहे. देखो ये पैरेलल है, यहाँ पे बॉल आएगा तो ये भी पैरेलल, तो दोनों सेम ही रहेगा. पैरेलल में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर में चेंज होता है. तो यहाँ पे आपका इक्वेशन होगा v परपेंडिकुलर. Okay, so by this way you just gives the answer of impulse imparted on any one of this ball. For ball 1, ball 2 is a work like a wall, and for ball 2, ball 1 is work like a wall. Okay, so note करो example को. Okay guys, let's come to the next example. 5.24 from the textbook additional exercise. A figure shows, मतलब this figure is given in a problem statement. Okay, this figure shows the position versus time graph for a motion of a body of mass 0.04 kg. So whatever this graph is given to us, this is for body having a mass m is equal to 0.04 kg, and this type of x is changed with respect to time. But here x is in centimeter. See, you must be not this. यहाँ पे जो x है वो सेंटीमीटर में, इसको आप नोट करो, क्योंकि आप अगर मीटर में काउंट करोगे, यहाँ पे 2 है तो आपको इस जगह पे x इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर रखना होगा. ओके, ऐसा यूनिट से यूज़ करते हैं हम जो जनरल कैलकुलेशन में, तो आप इसको यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है. सजेस्ट सम सूटेबल फिजिकल कंटेंट फॉर दिस मोशन. मतलब इसी कोई सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन हमें देनी, लेकिन अभी पता नहीं है कौन सी सिचुएशन है, तो पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिजिकल सिचुएशन में सोचेंगे. ठीक है. Now, what is the time between the two consecutive impulse received by the body? So we have to find the time between the two impulse, time between the two successive impulse. Okay, so first data we have to find what is the time between two successive impulse, between two successive impulse. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इम्पल्स मैग्नीट्यूड. सो सेकेंड क्वेश्चन है बी, मैग्नीट्यूड इम्पल्स इज व्हाट. आपको डायरेक्शन नहीं फाइंड करना है, डायरेक्शन तो चेंज होते रहते, तो फिर मैग्नीट्यूड डिफाइन करना. ठीक है, तो ऐसा कोई ग्राफ है x versus t. So when this impulse is applied on a body, when the momentum is changed, if the momentum is changed at any time, then at that moment we can say that impulse is applied on a body. Okay, so consider this O2a. If you just consider O2a, then x versus t graph. So straight line represents the velocity. स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी. तो यहाँ पे मान लो कि वेलोसिटी जो है वो v है.
ओके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और ए टू बी, ओ टू ए वेलोसिटी है, ए टू बी अगेन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पे नेगेटिव, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल ग्राफ मींस वेलोसिटी जीरो, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, सो दिस इज पॉजिटिव वेलोसिटी, हियर इट इज negative velocity, again here it is positive velocity, here it is negative velocity, means that is a continuum. So what does this mean? If you just consider this point A, आपने अगर A points को count किया, then velocity is changed from positive to negative. So first time velocity is changed at the point A, so impulse is applied. Now you consider the point B, thus velocity is changed from negative to positive, again the velocity is changed, it means impulse is applied. If you consider the point C, velocity is changed from positive to negative, again impulse is applied, here again negative to positive, impulse is applied, impulse is applied. Means this all at this all points impulse is applied. Okay, so A points पे impulse apply हुआ 2 सेकेंड, B points पे impulse apply हुआ 4 सेकेंड, C point पे 6 सेकेंड, D point पे 8 सेकेंड, E पे 10 सेकेंड. It means after every 2 seconds velocity of an object is changed, so after every 2 seconds impulse is applied. This is our first answer. Okay, so let's write this answer. What is this answer for first, this one? After every 2 seconds velocity of an objects is change. After every 2 सेकेंड, कितनी सेकेंड के बाद? 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स कैसी हो रहे? चेंज हो रहे, मतलब यहाँ से प्लस से माइनस हुई, माइनस से प्लस हुई, प्लस से माइनस हुई, माइनस से प्लस हुई, प्लस से माइनस हुई. ओके, मतलब पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख देता हूँ. सो कौन से पॉइंट पे? ए बी सी डी ई एफ, ऑल ए पे, बी पे, सी पे, ठीक है, सभी पॉइंट्स पे ऐसे वेलोसिटी चेंज हो रहे. सो आफ्टर एवरी 2 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज, सो impulse is applied on an object, okay, at this all point, so at every 2 seconds impulse is applied. So impulse is applied on an object at this time, means at this time or at these points, ये सभी पॉइंट्स पे इंपल्स अप्लाई हो. कौन से? ए पे, बी पे, सी पे और डी पे, और कंटिन्यू लाइक दिस. सो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर. व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव इंपल्स? सो इंपल्स इज अप्लाइड व्हेन द वेलोसिटी इज चेंज. इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंज देन व्हाट हैपेंस? सी, यू जस्ट कंसीडर द सिंपल सिचुएशन. इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे पहुंच के भी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम कितना चेंज होगा? डेल्टा p इज इक्वल टू m v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो 0 हो जाएगा. तो अगर डेल्टा p 0 है तो इंपल्स भी कितना होगा? 0. Without changing velocity you can't say anything about the impulse. Okay, if you just if velocity does not change of any body, then the impulse is 0. Then the impulse does not apply on a body. It means if you have to find the impulse, then velocity of an object must be the change, otherwise impulse is 0. अगर आपको impulse ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करना है तो वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का पता नहीं, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, लाइक दिस एंड सो ऑन. मतलब एवरी 2 सेकेंड पे वेलोसिटी चेंज हुई, एवरी 2 सेकेंड पे इंपल्स अप्लाई हुआ. ठीक है, तो पहला आंसर है. इसमें आपको मैग्नीट्यूड नहीं पूछा था, इसलिए सिर्फ हमने क्या काउंट किया, इसमें डायरेक्शन देख ली वेलोसिटी की, तो आपको ये पहला आंसर मिलेगा. सेकेंड आंसर पे चलते हैं. व्हाट इज दिस इंपल्स? इंपल्स मीन्स चेंज इन मोमेंटम. व्हाट इज दिस इंपल्स? इंपल्स मीन्स चेंज इन मोमेंटम. हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ओनली. इट्स मीन्स वी हैव टू फाइंड m डेल्टा v, दैट इज वी हैव टू फाइंड दिस वन. हमें यह फाइंड करना है. ठीक है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? व्हाट वी आर डूइंग, सो वी गेट दिस आंसर m डेल्टा v. मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड कर. देखो यहाँ पे सिमिलर स्लोप है 0 to 4 से, मीन सिमेट्रिकल फिगर है, तो v की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं. और ये प्लस है तो ये माइनस है, प्लस है तो ये माइनस है. मतलब एक बार ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, उसके
इस तरफ आ रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है। देखो मतलब ऑब्जेक्ट की मोशन कुछ ऐसी है, मूव राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड, ऐसी कुछ मोशन है, ठीक है। तो ऐसी कुछ मोशन है तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्शन साथ इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। सो व्हाट इज दिस v? v इज अ स्लोप ऑफ ग्राफ। इसका स्लोप फाइंड करना है तो यहाँ पे कुछ ऐसा काउंट कर लो, यहाँ पे सपोज थीटा है, यहाँ पे क्या है थीटा, तो tan थीटा इज अपोनेंट अपॉन एडजेसेंट। सो इसमें आंसर होगा tan थीटा। अपोनेंट मीन्स कितना 2, अपोनेंट मीन्स कितना 2, नो इट्स अ 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, दैट्स अ 2 इंटू 10 रेज टू माइनस अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है 2, तो सेकेंड में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए सेंटीमीटर में से मीटर में काउंट करना है, ठीक है। तो मतलब वेलोसिटी का आंसर क्या हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू कैंसर 10 रेज टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गई वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हो गया। इसमें तो डायरेक्शन के साथ रखोगे, तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज दिस इंपल्स? सो j is equal to m 0.04 into delta v, delta v means v final minus v initial। सपोज आप काउंट करो कि a पे फाइंड करना चाहते हो, b पे भी कर सकते हो, c पे भी कर सकते हो, कोई भी पॉइंट्स पे आप इंपल्स फाइंड कर सकते हो, सबकी वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। चलो हम a पे काउंट करते हैं। सो एट पॉइंट a हम इंपल्स काउंट करते हैं, तो j a पे a जो है वो v फाइनल हो, मीन्स आफ्टर द a। If wherever you want to finding out the impulse, you just consider the v final means what, the moment after this time, and v initial means what, moment before this time, okay। मतलब कि 2 सेकेंड से पहले a आपका v initial हुआ और 2 सेकेंड के बाद a आपका v final हुआ, किसके लिए, a के लिए। b पे काउंट करना चाहते हो तो a इनिशियल होगा, a फाइनल होगा। e पे काउंट करना चाहते हो तो a इनिशियल होगा, a फाइनल होगा, ठीक है। मींस वेरेवर यू कंसीडर दिस टाइम, wherever you consider this, means wherever you want to finding out the impulse, what is v final, thus velocity after this moment, and what is v initial, velocity before this moment, ठीक है। अगर a पे काउंट करते हो तो आफ्टर वेलोसिटी क्या है माइनस v, बिफोर वेलोसिटी क्या है v, यहाँ पे तो साइन के साथ रखना है, ठीक है, उसका बाद में मोड कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने vb वेक्टर लिखा है, तो इसका आप मैग्नीट्यूड बाद में कर लेना, तो एक मैग्नीट्यूड रख देता। तो v फाइनल a के लिए क्या है माइनस v, सो माइनस v, डेल्टा v मीन्स व्हाट इज डेल्टा v, v फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो v फाइनल रख दिया साइन के साथ, ये माइनस, तो माइनस v इनिशियल मतलब ये a v इनिशियल हुआ कितना है v, सो a हुआ v, और बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। सो मोड मतलब मैग्नीट्यूड, मोड मीन्स व्हाट मैग्नीट्यूड, बिकॉज हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए, सबकी वैल्यू रखो, तो मोड 0.04 यहाँ पे, ओके, व्हाट इज दिस j 0.04 इंटू माइनस वी माइनस 2v, सो माइनस 2v कितना है, कहीं फाइंड किया था ना, यस यहाँ पे माइनस 2 10 रेज टू माइनस 2, लेकिन ये माइनस है, मोड़ किया तो मतलब मैग्नीट्यूड लिखो यहाँ पे। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, j इज इक्वल टू, इसको कुछ काउंट करो तो 2 इंटू 0.04 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, सो 2 इंटू 0.04 को कैसे लिख सकते हो 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, है ना, 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 इंटू माइनस 2, सो इंटू 10 रेज टू माइनस 2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 न्यूटन इंटू सेकेंड। सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। कैलकुलेशन को आपको अपने आप भी करना था, लेकिन मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी इसमें है कि ऐसी सिचुएशन कहाँ पे फिजिकली पॉसिबल है। सो लेट्स वी राइट दिस फिजिकल सिचुएशन हियर। फिजिकल सिचुएशन ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं, सिंपल है। आप कुछ ऐसी सिचुएशन काउंट करो। चलो यहाँ पे कोई वॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी वॉल है, ऐसे मतलब दो ऐसी वॉल को रखो। कितना डिस्टेंस वॉल के बीच में होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप ले लो
2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कोई बॉल ले लो, तो बॉल इस तरफ जाएगा, यहाँ पे कोलिजन होके वापिस आएगा इस तरफ, मतलब ये बॉल इस तरफ से कोलाइड होगा। देखो यहाँ पे, मतलब दिस बॉल इज रिबाउंसिंग आफ्टर द कोलिजन बिटवीन द टू वॉल, ओके, हैविंग अ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वॉल इज व्हाट 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पे कोई 2 होल ऐसे रख दो आप, उसके बीच में ऐसे बॉल जो है वो कोलिजन होगा, रिबाउंस होगा, तो ऐसी मोशन होगी ना। देखो आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलो, पॉजिटिव एक्स। सो पहले पॉजिटिव में मूव किया, कोलिजन हुआ, वापस आया, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी हुई, यहाँ पे मूव, यहाँ पे कोलिजन हुआ, राइट हैंड साइड मूव हुआ, तो ये इस तरह से होता है, देखो है ना। तो पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी, सो पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे आपको लेना है x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो 0 से स्टार्ट किया, a पे पहुंचा, मतलब A B C D E F G एंड सो ऑन। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे ग्राफ आप इस तरह से फिजिकली ग्राफ को, मतलब एक ग्राफ को फिजिकल सिचुएशन ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फिजिकल सिचुएशन में, अ बॉल रिबाउंस बिटवीन द टू वॉल्स, separated by 2 सेंटीमीटर। ऐसे फिजिकल सिचुएशन होगा, अ बॉल विच इज रिबाउंस बिटवीन द टू वॉल्स सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। तो यही सिचुएशन होगी सेम टू सेम, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया है, आपको अगर इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से आप लिख सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज आवर क्वेश्चन, एंड इसका क्वेश्चन है काफ़ी डिफरेंट है। आपको इसमें मतलब थियोरी कंसेप्ट जो आपने सीखा है वो यहाँ पे अप्लाई करके सीखना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब काफ़ी डिफरेंट प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम एकदम सिंपल है लेकिन डिफरेंट है, इसलिए आप इसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। नोट कर दो एग्जाम्पल को। Let's come to this next example, 5.27 from the textbook exercise. A helicopter of mass 1000 kg. So this one is a helicopter and its mass is what? Suppose mh is equal to 1000 kg. I'm just trying to my best to draw this helicopter, okay? My drawing is not too well, but you understand this is the helicopter. Suppose जैसा मुझे आता था वैसे मैंने बनाया, ठीक है। एंड इट्स वर्टिकल एक्सेलरेशन इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मतलब हेलीकॉप्टर जो है वैसे वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ग्राउंड पे था और वर्टिकल एक्सेलरेशन उसमें जा रहा है, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द गिवन सिचुएशन, ओके। द क्रू एंड द पैसेंजर वे इज 300 kg। मतलब यहाँ पे वैसे क्रू और पैसेंजर, पायलट सब लोग होंगे ऐसे, you can say that is a crew plus passenger, this whole, the crew and passengers weight is what 300 kg. so this is the given to us and it's consider mcp। तो इसका मास जो है वो मास क्रू पैसेंजर ले लो, हेलीकॉप्टर का मास जो है वो mh ले लो, ठीक है। ऐसा गिवन डेटा है। so number of questions are there. first question, the force on the floor by the crew and passenger. so first question, the force on the floor, ऑन द फ्लोर मतलब यहाँ पे, ऑन द फ्लोर मतलब ये फ्लोर हुआ यहाँ पे। सो फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द प्लेन ड्यू टू दिस क्रू एंड पैसेंजर, मतलब इतना ही फोर्स चाहिए। तो पहले फोर्स चाहिए, फोर्स ड्यू टू क्रू एंड पैसेंजर इज इक्वल टू व्हाट? क्रू एंड पैसेंजर से फ्लोर पे कितना फोर्स लगता है वो फाइंड करना है। तो आप इतना ही एफबीडी बनाओ, काफी डिफरेंट प्रॉब्लम, आप इतना ही एफबीडी बनाओ, ठीक है। तो है फ्लोर, ये क्या है? फ्लोर ऑफ हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे सभी को मैं एक साथ में ले, तो यहाँ पे एक क्रू और पैसेंजर है, ठीक है, क्रू प्लस पैसेंजर। इफ हेलीकॉप्टर मूविंग अपवर्ड विद द 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन दिस ऑल द क्रू एंड पैसेंजर आल्सो मूविंग अपवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन है a, पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? अब अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे तो इसके एफबीडी में डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लगने वाला है? What is this downward force? mg, but which m? This one, m crew passenger,
m क्रू पैसेंजर इनटू g डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस होगी, देखो यहाँ पे दिस वन इज अ कॉन्टेक्ट सरफेस फॉर अस, सो एट दिस कॉन्टेक्ट सरफेस अपवर्ड फोर्स इज विच वन? नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स. Right now it is n, maybe you answered this one, so this n is upward. So how much force? See, that is the FBD of crew plus passenger. अगर जो एक क्रू पैसेंजर है फ्लोर से इस पे कितना फोर्स लग रहा है n, तो फ्लोर पे भी कितना फोर्स लगेगा? Same as per the Newton third law. If the floor is applied the some force on the crew plus passenger is upward direction, then the same force is applied by the crew and passenger on the floor in downward direction. Thus always both this force opposite and equal. So अगर इस पैसेंजर पे अपर डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? n, तो फिर फ्लोर पे डाउनवर्ड में सेम ही फोर्स लगेगा n. So what you have to find here, actually this is equal to n. आपको फाइंड करना है n, an फाइंड करना है, ठीक है? तो चलो n फाइंड करना है तो न्यूटन मतलब 1 by 1 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. So use this Newton second law here. So as per the Newton second law, F net is equal to ma. F net is equal to ma. What is the F? You just consider only this F. n फाइंड करना है तो ये n फाइंड करो, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट देनी है, ठीक है? चलो तो ये n फाइंड करते, तो इतना FBD देखो आप, इतना तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ma, इज इक्वल टू व्हाट? ma. सो अप्लाई करो रूल को. चलो सो व्हाट इज दिस? आई एम जस्ट यूजिंग दिस अनदर पेन. सो बाय द यूजिंग ऑफ न्यूटन, ये तो सेम ही हो गई, ये लेते हैं. चलो बाय द यूजिंग ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, F net is equal to ma. So what is F net? n minus mcp into g is equal to, इस क्रू पैसेंजर का मास कितना है? mcp into a. तो इसमें n क्या हो जाएगा? n is equal to mcp into g plus mcp into a. So everything is given 300 and ये कितना है? 15. So दोनों ही वैल्यू यहाँ पे रख के आप n फाइंड कर लो, तो आपको n मिलेगा. किस मतलब जो कैलकुलेशन है वो होमवर्क में कर लेना, ठीक है? तो कैलकुलेशन इज इन होमवर्क, मतलब जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर फ्लोर पे डाउनवर्ड लगेगा. ओके, सो व्हाट इज योर फर्स्ट आंसर? दिस मच ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन फ्लोर इन डाउनवर्ड direction. Okay, this much of force applied on floor in downward direction by crew plus passenger. क्रू प्लस पैसेंजर से इतना फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है? मतलब जो भी आंसर मिलता है बाद में आपको आंसर ऐसे लिखना है कि n इज इक्वल टू दिस मच एंड दिस सेंटेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड ओवर देयर. ओके, मतलब ऐसे आपको आंसर उसमें नोट करना है. क्लियर है सबको? चलो तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम पे चलते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम भी गिवन है. व्हाट इज द सेकेंड वन? एक्शन ऑफ द रोटर ऑन द ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर. मतलब ये रोटर जो है रोटेट करेगा तो उससे जो सराउंडिंग एयर है उस पर कितना फोर्स लग रहा है? हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द एयर बाय द हेलीकॉप्टर. मतलब क्वेश्चन पूछा सा है वो हाउ मच फोर्स अप्लाइड ऑन द एयर बाय द हेलीकॉप्टर. सेकेंड प्रॉब्लम पे चलते हैं. ओके, सो व्हाट इज द सेकेंड प्रॉब्लम? सी फोर्स ऑन द एयर बाय द हेलीकॉप्टर. तो आप उतना एफबीडी बना, मतलब पूरा हेलीकॉप्टर साथ में ले लो. तो मतलब मान लो कि पूरा हेलीकॉप्टर है, पूरा हेलीकॉप्टर सब कुछ आता है, ए पर्सन भी आते हैं, हेलीकॉप्टर सब कुछ आता है. तो उस पूरे हेलीकॉप्टर का मास कितना है? m हेलीकॉप्टर प्लस m क्रू पैसेंजर, ये टोटल है. तो ये पूरा हेलीकॉप्टर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में. कितने से? a से, ठीक है? तो इसका पूरा mg कहां पे लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा. सो mh प्लस mcp इंटू जी, इतना फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है. तो हेलीकॉप्टर क्यों ऊपर जा रहा है? व्हेन दिस रोटर इज रोटेटिंग, why this helicopter is moving now upward direction? When the rotor is rotating, so some force is applied by the helicopter rotor on the air. So the similar force is applied by the air on the helicopter in upward direction. मतलब जितना फोर्स एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना फोर्स हेलीकॉप्टर सराउंडिंग एयर पे अप्लाई करता है उतना ही फोर्स सराउंडिंग एयर हेलीकॉप्टर पे अप्लाई करते हैं. तो हेलीकॉप्टर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एयर का फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड. दैट्स कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स. वी कॉल इट इज अ थ्रस्ट फोर्स अप्लाइड ऑन द हेलीकॉप्टर बाय द एयर.
इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स। कौन अप्लाई कर रहा है, एयर। किस पे अप्लाई कर रहा है, हेलीकॉप्टर पे। तो वो फोर्स कहां पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एन हेलीकॉप्टर ड्यू टू एयर, इसको आपने यहाँ पे एन लिया था, यहाँ पे कोई और सिंबल लेते हैं, तो आप यहाँ पे एन डैश ले लो। एन डैश क्या है, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर। ठीक है, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर, दैट्स एन डैश। हमने सिंबल चेंज कर दिया, पहले केस में हमने एन लिया था, यहाँ पे हमने सिंबल चेंज किया एन डैश। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन एयर। तो आपको मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे कुछ एयर तो होगी सराउंडिंग में, यहीं पे कहीं पे एयर होगी, मतलब इस ये जो हेलीकॉप्टर है उस पे एयर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, एफ ड्यू टू एयर, एफ ड्यू टू एयर, इसको हमने क्या लिया, एन डैश। तो फिर इतना ही फोर्स एयर पे डाउनवर्ड लगेगा, सो एफ ऑन एयर, ए भी एन डैश ही रहेगा, ओनली डायरेक्शन अपोजिट होगी, अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो ये अपवर्ड एन डैश लिया, तो यहाँ पे एन डैश कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड। यहाँ पे आपको वही क्लियर करना है कि हेलीकॉप्टर पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड, तो एयर पे कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सिंपल, डू यू अंडरस्टैंड, क्लियर है सबको। क्या करना है, फिर से बोल रहा हूं, हेलीकॉप्टर का रोटर जैसे ही रोटेट होगा तो फिर जो सराउंडिंग एयर है वो हेलीकॉप्टर पे फोर्स लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड। क्यों, क्योंकि हेलीकॉप्टर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर एयर पे कौन सी डायरेक्शन फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड। दोनों की वैल्यू कितनी होगी, सेम, मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। सो दिस इज द सिचुएशन, एफ ड्यू टू एयर, एफ due to air is equal to n dash and f on air is equal to again n dash। डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखते हैं, ये अपवर्ड होगी क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वेशन, इसलिए मैं दोनों ही लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हो। क्योंकि देखो सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है, एक्शन ऑफ रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द एयर। मतलब सेकेंड क्वेश्चन में आपको बी में क्या फाइंड करना है, आपको बी में फाइंड करना है फोर्स ऑन एयर इज इक्वल टू, ए क्वेश्चन बी है, मतलब यहाँ पे जो ने मैं फिगर ड्रॉ की है उसमें बी क्वेश्चन ऐसा है, और सी क्वेश्चन है फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू एयर। तो सी क्वेश्चन कौन सा है, सी, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन कुछ ऐसे है, मतलब दोनों केस में फाइंड तो एन डैश ही करना है। आप ए सोचो या फिर ए सोचो, दोनों केस में फाइंड क्या करना है, एन डैश ही करना है। लेकिन अगर एयर की बात कर रहे हो तो एन डैश डाउनवर्ड होगा, हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हो तो एन डैश अपवर्ड होगा। वही क्वेश्चन यहाँ पे समझना था, तो यहाँ पे फोर्स ऑन एयर एन डैश इज इक्वल टू व्हाट, दिस आंसर वॉट एवर यू गेट डाउनवर्ड साइड, whatever you get the answer, whatever, but you must be write the direction, because this MCQ asking in MCQ, this question is asking in MCQ, then the options is like this, 200 suppose, whatever the answer downward, whatever the answer upward, like this। so यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, ओके इसलिए कब से मैं डायरेक्शन ही समझा रहा हूँ। ओके अगर इसकी बात करें हो तो भी आंसर आपका क्या रहेगा, एन डैश इज इक्वल टू, बट जो भी आंसर आपको मिलेगा इसमें उसका आंसर बाद में लिखना है अपवर्ड। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड में कन्वर्ट कर दो तो आपका आंसर फाइनली हो जाएगा। तो इसका एफबीडी बनाओ तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे, बाय द यूजिंग ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, व्हाट यू गेट। अगर आपने इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ का अप्लाई किया तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो एन डैश, माइनस अपोजिट में तो पूरा है, देखो यहाँ पे पूरा है, एम एच प्लस एम सी पी, एम एच प्लस एम सी पी इंटू जी इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए भी, एम तो इतना है ना, टोटल इतना एम है, तो इज इक्वल टू एम एच प्लस एम सी पी इंटू ए। तो इसमें से एन डैश को फाइंड करो, चलो you just find the n dash from this equation, so what you get, n dash is equal to mh
प्लस एम सी पी, ए कॉमन निकला है ना, राइट हैंड साइड माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू जी प्लस है. पुट द ऑल वैल्यू बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन हियर, एम एच गिवन, एम सी पी गिवन, एक्सेलरेशन गिवन, एंड जी इज इक्वल टू पुट 10. Here you consider g is equal to 10 meter per second square. Put the all value and calculate this answer by yourself. So remaining calculation is homework. ओके, एन डैश मिलने के बाद आपको लिखना है बी का आंसर जो भी है वो डाउनवर्ड साइड, सी का आंसर जो भी है वो अपवर्ड साइड. ठीक है, तो आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा है, मतलब ये भी काफ़ी डिफरेंट प्रॉब्लम है. यहाँ पे भी हमने सिर्फ न्यूटन सेकेंड लॉ थर्ड लॉ ही अप्लाई किया है, लेकिन कैसे अप्लाई करना है वही इस प्रॉब्लम में आपको सीखना है. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू गाइस मस्ट बी know how to give the sign of the forces, how to give the direction of the forces, and how we apply the Newton second law here. Okay, you must be understand it properly, and then after just understanding this full concept, you note this example in your books. Okay, note कर लो.